Hello, my dear student. Then how are you? I think you are all are fine, and you are very busy to prepare your board examination 2025, right? Everyone want to score maximum and maximum, but you have need some notes to prepare your board examination, and that's I provide you all the notes in very simple way, in very simple manner, with a very easy explanation. Already I have completed chapter number 1, that is the Indian economy on the eve of independence, but now we are going to start chapter number 2, that's named Indian economy 1950-1990. There is a lot of topics in this chapter, that is as like economic system, planning, agriculture development, industrial development, foreign development, etc, etc, etc. And I prepared all the videos in very short way in each and every topic. दैट मीन्स मैंने आपको हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए ताकि आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए. एंड इन दिस सीरीज एट फर्स्ट इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक सिस्टम. That means overall this is our sixth video, part 6, that is part 6 of Indian economic development. So what do you mean by economic system? Economic system क्या होता है? जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, that means the economic system means as a system where all the economic activities are going on. एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर इकोनॉमी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है. The way of performing the economic activities is known as the economic system. इकोनॉमिक सिस्टम एक वे होता है, एक मेथड होता है, एक पॉलिसी होती है जहां पर कंट्री का सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है. दैट मीन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी में जब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, अलोकेशन ये सब कुछ परफॉर्म होता है, दिस ऑल द सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम. इन दिस ऑर्डर इकोनॉमिक country which is the system of production, the system of resource allocation, a system of distribution. मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रोडक्शन कैसे होता है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिसोर्स को अलोकेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जहां पर प्रॉपर एक पॉलिसी तैयार की जाती है, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम. इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जब पढ़ा जाता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन आवर वर्ल्ड एंड दिस क्लासिफाइड इन नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नंबर 2 सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड नंबर 3 कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट तो छोड़िए, यहां पर हम बात करेंगे मिक्स सिस्टम की. किसकी बात करेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी की. दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी क्लासिफाई द इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम, देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम इन आवर वर्ल्ड. दैट इज फर्स्ट वन इज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, capitalist economy. Number 2 is known as socialist economy, socialist economic. Next one is mixed. क्लास 11 में माइक्रो आपने पढ़ा होगा इसी चीज को. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज द मार्केट इकोनॉमी, वेयर द ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द मार्केट. मार्केट इकोनॉमी का द बेसिक पर्पस ऑफ दिस मार्केट इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइज. इस मार्केट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्रॉफिट अर्न करना. वेयर द सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल द डिसीजन मेड बाय द पब्लिक ऑन द पब्लिक, इट्स डन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. द मेन मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी इज टू इंक्रीज द वेलफेयर और सोशल जस्टिस. And next one is mixed economy. Mixed economy is the combination of capitalist economy and socialist economy. That means in this economy both the private sector plus the public sector both are operating equally or parallel way in this economy to maintain the profitability and to maintain the welfare or social justice. Okay, now we have to read all this one by one. Number 1, capitalist economy. Capitalist economy is a economy that is also known as the capitalism or market economy. Okay, this is also known as the capitalist or market economy. The economy defined as the one which means of production are owned by the individuals or private sector that are free to take their economic decision as guided by the principle of profit maximization.
दैट मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है एंड दे आर फ्री टू टेक ऑल द इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीज द प्रॉफिट। दैट मीन्स उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑल द रिसोर्सेज are owned by the private sector only, all the economic decisions taken by the private sector only, and the basic feature is that there is no interference of government in this economy। that means वहाँ कोई भी interference government का नहीं होता है। all the activities freely done by the private sectors and the individuals। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? व्हाट इज द मोटिव एंड पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस इकोनॉमी? गवर्नमेंट द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ओनली। उनका काम है भाई कंट्री को चलाओ, सिक्योरिटी देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, बाकी काम हम कर लेंगे। कौन कर लेंगे? प्राइवेट सेक्टर, राइट। दैट मीन्स द मेन फीचर्स जानना जरूरी है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप। दैट मीन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, labor, capitalists are owned by the private sector. The mean of production are used to increase the profit। that means इनका मेन जो मोटिव होता है इस तरह से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना। दैट्स वाई दे हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट मैक्सिमम एंड ओनली द गुड्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होता है इट्स नॉट फॉर सोशल जस्टिस, दे वांट टू सोल्ड एट अ प्रॉफिट। वो इनको प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमॉन्ग द पीपल हैम्स ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। यहाँ पर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर होता है। दैट मीन जिसके पास जितना पैसा ज़्यादा होता है वो उतने ही ज़्यादा रिसोर्स को अपने पास खरीद सकता है। आपके पास पैसा कम है तो आपके कोई भी वैल्यू इस इकोनॉमी में नहीं है। दैट इज परचेजिंग पावर इज द बेसिक principle of this economy। At last, the role of government is largely confirmed to maintain the law and order of the country। इस कंट्री में गवर्नमेंट का एक ही काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नेक्स्ट वन इज द मेरिट्स। व्हाट आर द बेसिक मेरिट्स ऑफ दिस इकोनॉमी? The basic merit of this economy, that is to promote the self interest and profit maximization and increase the GDP growth। इस इकोनॉमी का बेसिक पर्पस होता है भाई सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाओ, अपने लिए काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सको और एटलीस्ट आप अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो। जितनी भी डेवलप कंट्री हम नॉर्मली देखते हैं, ऑल द डेवलप्ड इन और अराउंड अस, दैट इज अमेरिका हो गया, ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, These all are the capitalist economy। इस पूरी इकोनॉमी डेवलप्ड इसलिए बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है प्रोडक्शन बढ़ाना। प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के लिए आपको इकोनॉमी को में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट बट दिस इकोनॉमी हैव सम डिमेरिट्स लाइक यहाँ पर दे इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर सोशल वेलफेयर की जो बात होती है उसको क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। दे ओनली वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, दे ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द पुअर पीपल सफर। यहाँ पर जो पुअर होते हैं जिनके पास दे हैव लैक ऑफ मनी, उनको इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। एंड दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज ओनली ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है लेकिन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट इज आल्सो नोन एज द सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी। द इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, that is authorized by the center, that is operated by the center। center means the government। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट के थ्रू पूरी इकोनॉमी को ऑपरेट किया जाता है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड पब्लिक। दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन विच देयर इज अ सोशल collective public ownership of the means of production and economic decision are taken by the some central authority like government with the view of maximum social welfare। इस इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के थ्रू करती हैं और यहाँ पर मेन ओनरशिप होता है। गवर्नमेंट तो ओनली द फेस होता है बट ओनरशिप इज द पब्लिक, मतलब सबका कॉमन ओनरशिप होता है, किसी एक का नहीं होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है। भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी, चलो अपने घर पे लेके चलते नहीं। पहले के लोग क्या थे,
ट्रेन में बैठते थे, टॉयलेट करते थे और वहाँ टॉयलेट में रखा हुआ गिलास जो भी रखता है वो अपने घर पर लेके आते। ट्रेन अरे पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हमारी प्रॉपर्टी है लेके खा, नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स आपका भी है, सामने दूसरे का भी है, तो आप अकेला अपना हक नहीं जता सकते। दैट इज यूटिलाइज कॉमनली बाय द ऑल द पीपल। तो दीज आर द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सबके बराबर की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है। इट इज अज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज टू बेस्ट फॉर द कंट्री। यहां पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेता, ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहां पर पब्लिक के बिहाफ में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि पब्लिक के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, all the economic decision taken by the government. The features of this government, that is all the means of production are owned by the society or public. Means of production are used of manner such that social welfare is maximized. यहाँ पर मेन होता है कि कंट्री की, सोसाइटी की वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में होता है, गवर्नमेंट से ही होता है। व्हाट आर द बेसिक मेरिट्स? मेरिट्स मीन्स दिस इकोनॉमिक्स ऑलवेज इंक्रीज द इक्वलिटी ऑफ इनकम। यहाँ पर इनकम की इक्वलिटी कैसे बढ़ाई जाए, लो की इनकम, यहाँ पर पुअर रिच सबको एक बराबर ध्यान में रखा जाता है और हर किसी की इनकम को ग्रोथ करने की प्लानिंग होती है। बड़ा ग्रोथ प्रोसेस अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, वो इस तरह से होता है ताकि सोशल जस्टिस को बढ़ा के रखा जाए। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स आर बिकॉज इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस में सबको बराबर लेके चलना पड़ता है। इस तरह अंधे भी वही, काने भी वही, गूंगे भी, हर किसी को बराबर लेके चलना पड़ता है। सो डैट जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर क्या होता है, स्लो प्रोसेस में होता है क्योंकि आपको हर किसी को बराबर, जैसे एक क्लास में अच्छे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एक क्लास में बुद्धड़ भी बैठे पड़े हैं, मीडियम, तो आप जो है सबको लेके चलना पड़ता है। तो आपको उस स्लो जो बच्चा है, जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी पढ़ाने की जो रेट होता है, यानी कि जो तरीका होता है, वो भी थोड़ा स्लो स्लो होगा। इससे नुकसान किसको होगा, जो बच्चे तेज़ है उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में यहाँ पर स्लो प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जहाँ पर प्रॉफिट ध्यान में नहीं रखता ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है क्योंकि उनका मेन मकसद होता है इक्विटी एंड जस्टिस को बढ़ाना। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर and public sector. It is the combination of socialist economy and capitalist economy. Okay, so here is the basic features of socialist and capitalist. Both are mixed in this sector. So here the private sector and public sector both are operated parallelly. That means all the resources and all the economic activity done by the private and public ownership. So production decisions are governed largely by the principle of profit maximization, but not without checks and balance of social justice. यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उनका मकसद होता है प्रॉफिट बढ़ाना, लेकिन प्रॉफिट लेते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं पर सोशल जस्टिस को डिसबैलेंस ना हो पाए। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड में कोई है वो है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ओनर्स, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट इंटरप्राइज दोनों ही रन होते हैं और दोनों को बराबर मौका मिलता है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द गवर्नमेंट इंटरप्राइज बोथ आर ओन्ड इन दिस इकोनॉमी। The private sector production decision for and government by the principle of profit maximization. यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो होता है प्रॉफिट के लिए, और गवर्नमेंट जो करती है, पब्लिक सेक्टर जो करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए। दोनों होते हैं, इसको दोनों को पर ध्यान में रखा जाता है। प्राइवेट एंड पब्लिक प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। द मेरिट्स ऑफ दिस इज here the maintenance of profit maximization and social justice both are run equally. That means equality is इकोनॉमी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक मेरिट है। बट डिमेरिट्स है ऑफ्टन इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन। जब हम कहीं पर भी दोनों बराबर करते हैं तो प्राइवेट अपने आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर को करप्ट करने लग जाता है। दैट मीन्स
यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है एंड करप्शन लीड्स टू द इनएफिशिएंसी एंड अनप्रोडक्टिविटी को बढ़ाता रहता है। लाइक इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट मिक्स बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर को इतना आगे बढ़ने का मौका दिया नहीं, कंट्रोल रखा। जब पर कंट्रोल होता है ना वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो करप्शन बढ़ता है। मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। यहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइज को क्या किया जाता है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये भी एक लॉस हो रहा है। अब ये तो अलग अलग आ जाता है। नाउ कभी कभी एग्जाम में द क्वेश्चंस गिवन एज अ डिफरेंस बिटवीन द वेरियस इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होते हैं वो पूछा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी लाइक इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बता सकते हैं आप इसके, जैसे नंबर 1 ओनरशिप प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट में पब्लिक ओनरशिप होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। प्राइस डिटरमिनेशन कौन करता है, मतलब प्राइस को कौन तय करता है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, but socialist economy prices are determined by the central planning authority, that is by the government. But in the mixed economy all the prices determined by the central planning as well as the demand and supply of the commodity. The motive of the production, what are the main motive of production? The motive of production in capitalist economy is profit, socialist economy social welfare, and mixed economy profit motive as well as the social welfare. तो डिफरेंस जरूर बताइएगा, डिफरेंस जरूर आपको आना चाहिए किसी भी तरीके से हो। रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज अ कंप्लीट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हियर द फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन द प्राइवेट सेक्टर। कंपटीशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज फुल कंपटीशन एग्जिस्ट, बट इन सोशल इकोनॉमी देयर इज नो कंपटीशन एंड हियर इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, देयर इज नो कंपटीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर। Distribution of income is unequal, here is the quite equal and this is inequalities are exist, यहाँ पर inequality बनी रहती है, right? These are the basic differences of between the various sector, all the features and demerits, merits. If you have any doubt, any type of doubt, तो किसी भी तरह का डाउट होता है, then you can ask and you can visit my website to download the PDF. Okay? अगर आपको PDF चाहिए तो इस वेबसाइट में तुरंत विजिट कीजिए। किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, हैंडमेड नोट चाहिए, एनसीईआरटी बुक चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, रिवीजन नोट चाहिए, एनीथिंग एल्स यू वांट, आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको इस वेबसाइट में विजिट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड बाय।